بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ اسموگ کے تدارک کے لیے دار درخواستوں پر سماعت سمجھ نہیں آتی ڈیپٹی کمشنر کرتے کیا ہیں۔ ایک ضلع کا اگر ڈیپٹی کمشنر کچھ کرنا چاہے تو انقلاب آ جائے۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم ہے۔ تمام اسلاں کے ڈیپٹی کمشنرز کو پولیتھین بیگ کے استعمال پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم ہے۔ اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت کی اور دوران سماعت عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود پولیتھین بیگ کا پھر سے استعمال شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالت نے اس پر تشویش کا اظہار کیا۔ دوران سماعت ماحولیاتی کمیشن کے سینئر ممبر میاں عرفان اکرم نے یہ عدالت کو باور کروایا کہ پولیتھین بیگ کے حوالے سے جو اقدامات عدالت کی جانب سے کیے گئے ہیں، انتظامیہ اس پر عمل نہیں کروا رہی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ڈی سی اگر چاہیں تو ہر کام ہو سکتا ہے، ڈی سی اپنے کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس وقت میاں عرفان اکرم حاصل موجود ہے۔ میاں صاحب، مزید کیا عدالت نے نکات اٹھائے؟ دیکھیں، جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے یہ تو ایک الگ ہے، لیکن اس سے پہلے جسٹس شاہد کریم صاحب نے ہی شاپنگ بیگ پر پابندی کا ایک جو حکم ہے وہ صادر فرمایا ہوا ہے، جس پہ آج یہ شکایت لگی کہ شاپنگ بیگ کا استعمال پھر بے دریغ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اور انتظامیہ کو باقاعدہ حکم کیا کہ عدالت کے حکم مطابق جو پابندی لگائی گئی ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، اور خاص طور پہ ایک چیز جو 100% استعمال ہو رہی ہے کہ جو گاربیج بیگز ہیں وہ بھی پولیتھین کے بنے ہوئے ہیں۔ پولیتھین جو ہے وہ انوائرمنٹ میں نقصان دیتی ہے، اس لیے جج صاحب نے کہا ہے کہ جب کورٹ کے آرڈر کے تحت اس پہ پابندی ہے تو اس پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، اور جہاں جہاں شاپنگ بیگ استعمال ہو رہے ہیں، شاپرز استعمال ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ریت نکالنے والے زمین سے لوگ تو اس کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ صرف ٹریکٹر سے یا مطلب بلڈوزر سے نہیں اٹھا رہے، انہوں نے کوئی ہیوی مشینری منگوائی ہے جس سے وہ 150-200 فٹ نیچے ڈرل کرتے ہیں۔ اس ڈرل کرنے کی وجہ سے نہ صرف ارد گرد کے جو گاؤں ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ راوی کی بیلٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ جی بالکل، عدالت نے اس حوالے سے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے کہا کہ پولیتھین بیگ کے استعمال پر پابندی سے متعلق عمل درآمد اقدامات کے حوالے سے 3 مئی کو تمام جو ادارے ہیں وہ رپورٹ پیش کریں اور ماحولیاتی کمیشن اس پر اپنے تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ پنجاب حکومت کا اسموگ کے خاتمے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اقدام ماحولیاتی تحفظ اتھارٹی انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی بنانے کا فیصلہ ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسموگ مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے، جبکہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بٹے بند کر رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف حسن رضا سے۔ بتائیے حسن۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کا اسموگ کے خاتمے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ اتھارٹی انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتھارٹی ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات اور قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرتی ہوئی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں اسموگ کیبنٹ کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسموگ مانیٹرنگ سیکٹورل سیل بنایا جائے گا، جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہوگا۔ ماحول کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ کے پیچھے پر عمل درآمد کے لیے لیگل فریم ورک بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ہر شعبے کے لحاظ سے قوانین اور ضابطوں پر عمل درآمد کے لیے ہنگامی اقدامات کا ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کون سا شعبہ اسموگ میں کتنے اضافے کی وجہ بن رہا ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ اسموگ، زہریلے مادوں اور دھوئیں کے اخراجات کے ذرائع پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ صنعت اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے متعلق ماحولیاتی قوانین اور ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کروائیں گے۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹا نہیں چلے گا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے بند کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زیادہ دھواں چھوڑنے اور خراب انجن والی گاڑیوں کو بند کیا جائے گا۔ خراب انجن والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ اور سرٹیفکیٹ کا نظام لایا جا رہا ہے۔ زہریلے دھوئیں پر کنٹرول کے لیے تمام صنعتوں کو جو ہے امیشن کنٹرول سسٹمز لگانے کا پابند کرنے کا نظام تیار کر دیا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حسن۔ محکمہ خوراک کا چوزے کی برآمد پر مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ ہے۔ اسمبلی منظوری کے لیے محکمہ قانون کو بھجوا دی گئی ہے۔ ذرائع محکمہ خوراک کے مطابق پابندی سے مقامی سطح پر
रेट में 200 रुपये किलो तक कमी आ सकती है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। इरम, देखिए, क्योंकि शहर में मुर्गी जो है वो बहुत महंगी बेची गई और अभी तक जो है नौकरी जो है वो टूट नहीं रही थी, जिस पर महकमा खुराक का आखिरकार काफ़ी सालों बाद जो है ये फैसला सामने आया है, जिसमें महंगी मुर्गी पर बिलाखिर कई साल बाद वजारत खुराक को सार्फिन का ख्याल आ गया और उन पर तरस भी आ गया कि चूजे के बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में देखा गया है कि बरामद तब की जाती है जब आइटम जो है वो सरप्लस हो या इसकी किल्लत हो, मगर बरामद की जा रही थी मुर्गी जिसको अब उस पर पाबंदी जो है वो आयद की गई है। इस पाबंदी की वजह से मकामी सतह पर चूजे की कीमतों में जो है वो 200 रुपये किलो तक कमी आ सकती है। ज़राए वज़ारत खुराक कह रहे हैं कि साबिक दौर में गलत पॉलिसियों पर चिकन महंगा हुआ और अब जो है इसी सिलसिले में वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से बात हुई तो उनका ये कहना था बिल्कुल समरी भिजवा दी गई है वज़ारत कानून को और अनकरीब जो है कैबिनेट कमेटी के फैसले के बाद इस पर अमल दरामद शुरू करवा दिया जाएगा और महंगी मुर्गी को बहुत जल्द जो है वो सस्ता होने की भी खुशखबरी आएगी कि 200 रुपये किलो तक इसकी वाजिया कमी सामने नजर आएगी, तभी इसकी बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और इस वक्त जो है समरी भिजवा दी गई है जिसके ऊपर फौरी तौर पर जो है कैबिनेट कमेटी से भी दरखास्त कर दी गई है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर फैसला करें। पाबंदी से मुकामी सतह पर 200 रुपये किलो तक कमी आ सकती है। इस बारे से ज़राए महकमा खुराक का ये कहना है कि बहुत देर तक ये बरामद की गई और जो कि ये फैसला गलत था बरामद करने का और इस आइटम को जो है वो सरप्लस होने पर या किल्लत आने पर बरामद करना था, जबकि जो है पंजाब भर में जो है कोई किल्लत नहीं थी जिसकी वजह से इसकी बरामद होने पर जो है महंगा गोश्त बेचा गया और ये पॉलिसियां जो हैं गलत पॉलिसियां थी जिसकी वजह से इस समरी को भिजवाया गया है और बहुत जल्द जो है समरी जो है इसको मंजूर किया जाएगा और इसके बाद जो है फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। 200 रुपये किलो तक जो है चूजे की कीमतों में कमी आ जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। सब्जियां फलों के महंगे दामों में फ़रोख्त जारी है। लहसुन 750, अदरक 700, नींबू 250, प्याज 200, टमाटर 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। खजूर 500, सेब 350, पपीता 220, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 160, खरबूजा 150 रुपये किलो में दस्तयाब, जबकि चिकन की कीमत 612 रुपये किलो पर बरकरार है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। सरकारी नरखनामे जो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं उनमें भी अब महंगाई जो है वो रोज़ाना ही जो है दिखाई देती है, क्योंकि कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। 7 सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर इजाफा किया गया। जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई उसमें लीमू चाइना 10 रुपये महंगा करके 205 रुपये, टिंडे देसी 10 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये, लेकिन मार्केट में देसी टिंडे जो हैं मंडियों में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बैगन 10 रुपये महंगे करके 80 रुपये। मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। फल जो हैं वो भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, जबकि जो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आज जो ब्रायलर के कीमतें हैं जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से कम हो रही थी, आज उनको ब्रेक लग चुकी हुई है और ब्रायलर 612 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया है। अंडे भी 237 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखे गए। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या क्या ख़रीदा है? पहले यही सामान कितने का आ जाता था, अब कितने का आ रहा है? खासा महंगा सामान आता है। 300 रुपये किलो सब्ज़ी है, 400 रुपये किलो अरबी बिक रही है। 400 रुपये कोई एक नहीं ख़रीद सकता 1 किलो। और जो महंगाई दिन ब दिन रेट ज़्यादा हो रही है, मगर ये मैं अर्ज़ करूँगा कि प्याज की कीमत कम हो रही है। पहले ये 100 से बिक रहा था, अब ये 150 की सतह पे आ गया है। और ये जो ना इस गवर्नमेंट को से गुजारिश है कि गवर्नमेंट इसको ना कम से कम जो निरख सरकारी तौर पे होते हैं उसको ये पाबंदी फरमाएं। इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो सरकार ने रेट निकाले हैं उसको पाबंदी दुकानदार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फलों का रेट जो ना वो भी खासा जा रहा है। आज बिल्कुल आज जो है वो शहरियों का ये कहना है कि कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ और ये कीमतों में इजाफा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो परचेजिंग पावर या क़ुव्वत ख़रीद जो है वो शहरियों की सुकड़ती जा रही है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बेहतर इक़दाम करे ताकि लोगों को अशिया ख़ुरनोश की ख़रीदारी में रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम का जीना महाल। कहते हैं कि अब तो एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। बिजली गैस के बिल अदा करेंगे बच्चों का पेट पाले। मज़ीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। जी 500 रुपया दिहाड़ी है, ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਏ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਵੀ ਦੂਣੇ ਤੀਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ,
अन्यथा रोज़ियां दे विच ते एड्डा कुछ जुल्म होया कि गरीब आदमी जेड़ा वो फल ओदा बच्चा तरसदा है। गरीब आदमी क्या खा सकता है, ये तो महंगाई ऐसे ही है। रोटी तंदूर पे कह रहे हैं सस्ती कर दी है, जाते हैं मिलती नहीं है, मंडी में आते हैं चीज़ें कह रहे हैं सस्ती हैं, दुकानदार देता नहीं है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो 200 रुपये का किलो प्याज ले जाएगा, आटा कहाँ से लेगा, चीनी कहाँ से लेगा, घी कहाँ से लेगा, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं ना। यहाँ भी ये 100 रुपये किलो मिली है, घर के पास 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो। बस 10-20 की कमी के लिए इधर आते हैं कि चलें जी, जो बच्चों के लिए जितना बचा सकते हैं उतना बंदा सेव कर ले। अभी सिर्फ धनिया पुदीना ही लिया है तो ये 200 रुपया लग गया, ये सिर्फ ये धनिया पुदीना और इसके अंदर 200 रुपया लग गया। और जो है वो हालांकि क्या पुदीने की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अब वही चीज़ें जो है वो आहिस्ता महंगी होती जा रही है। और हुकूमत के 25 लाख टन गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है, मज़ीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं है। अगर हुकूमत मज़ीद गंदम ख़रीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा, हुकूमत को किसान को बचाने के लिए हर किस्म का इक़दाम उठाना चाहिए। अक्रॉस द आइल ये कोई शक की बात नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट की एक पोजीशन है और वो पोजीशन फार्मर को रिलीफ देने की है जो मेरे तक कम्युनिकेट हुई है। और वो ये है कि बेशक बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और फूड डिपार्टमेंट तो अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था, तो वो कुछ 2.25 1000 मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता व्हाट वाज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई है तो फिर आप उनसे कहें कि फर्दर प्रिक्योर करें, तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेस नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, और इंपोर्ट वाली गंदम जो है वो क्वालिटी में बुरी है, अनडाउटेडली बुरी है। उसका जो मिलर को जा रही है उसकी कीमत कम है, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट प्राइस जो है वो 3900 है। अब ये फैसले किस बुनियाद पर किए गए? उस वक्त लग रहा था कि जो क्रॉप है वो थोड़ी है और इनको इंसेंटिवाइज करें फार्मर को, और इंसेंटिवाइज करें ताकि एक बड़ी सपोर्ट प्राइस के साथ इंसेंटिवाइज करें। ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीनवाइल इंपोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे जाएगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल। और उस फार्मर को लुक आफ्टर करने के लिए इनको अपनी पॉलिसी के अंदर हर वो टूल ऐड करना पड़ेगा जिसके साथ किसान न मारा जाए। दिस इज व्हाट वी से। अच्छा, ये बताएं कि कल सोशल मीडिया पे एक बड़ी चीजें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, मरियम नवाज की पुलिस की जो वर्दी पहनी है, इस पर आप क्या कमेंट्स करेंगे? देखिए, सेरेमोनियल है, इनसिग्निफिकेंट है। अगर वहाँ पे जाके उनके साथ एक ओनरशिप के तौर पे उन्होंने ये पहन लिया यूनिफॉर्म, तो ये पहली बार थोड़ी पहना है, बहुत से चीफ मिनिस्टर। स्पीकर मलिक अहमद खान की सदस्यदाद पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान इज़हार ख्याल कर रहे हैं। थैंक यू। और 105 नंबर कमरे या मेरे चैम्बर में जहाँ भी दे दें वो एक पहुँच जाएंगे सर। थैंक यू। Mr. Speaker, I lay the following reports. Special audit report on the accounts of payment to ghost employees in District Education Authority, Sargodha for financial year 2016-17 to 2018-19 for the audit year 2019-20. Number 2, special audit report on the accounts of Deputy District Education Officer MEE Tehsil Raiwand, District Lahore, financial period 2015 to 19 for the audit year 2020-2021. Number 3, audit report on the accounts of Climate Change, Environment and Disaster Management Organizations, Punjab for the audit year 2019-20. Number 4, audit report on the accounts of expenditure of Government of the Punjab for the audit year 2021-22, Volume 1 and 2.